co-counsel dealing with the pleadings. The second co-counsel is dealing with the plaintiff, and the third co-counsel is dealing with the arguments of the case. The counsel seeks permission to begin the statements of facts. The suit property belongs to the first defendant by virtue of a registered. The second defendant dated 5 July 1995 with the defendant for the purchase of the suit property against a total sale consideration of rupees 10,000 and on the date of sale agreement itself. The entire sale consideration was paid to the defendant. The defendants handed over possession of suit property to the plaintiff on date of sale agreement, and since then the plaintiff is in and enjoying suit property the defendant. The defendant also handed over original sale deed dated 18th March 1980 executed in favor of the first defendant to the plaintiff. In the sale agreement, the defendant agreed to execute sale deed in favor of the plaintiff or in favor of his nominee. On 5 June 2007, the plaintiff cordially requested the defendant to execute the sale deed in his favor. Defendants promised to execute the sale deed in 6 months' time. Since they were employed in Tripur, defendants avoided execution of sale deed in favor of the plaintiff. On 4 January 2009, the plaintiff come to know that the defendants were trying to alienate the suit property to a third party. Since the market value of the property has been increased, the plaintiff was already ready and willing to perform his part of the contract. On 5th January 2009, the plaintiff sent a notice to the defendant for executing the sale. On 6th January 2009, the defendants tried to interfere with the plaintiff's position. So the plaintiff filed a suit for relief of specific performance of contract and the permanent event. I would like to take the permission from the Honorable Court for providing the evidences on behalf of the plaintiff. The plaintiff examined himself and the 3 other witnesses. He disposed and retired the content of the plan and replied upon the documents which were marked as A1 to A8. W2 and W3 are the attesters of A1 agreements. W4 is a subscribe of the Exhibit A1. The plaintiff did not examine any other independent witnesses to prove the advertisement stated in the plan. The plaintiff addresses the notice of the defendant in A3 dated on 5 January 2005, which were also avoided by the defendants. The office copy of the pre-suit notice has been marked as A6. It was received by the D1, it was denoted as a defendant 1, and also the postal acknowledgement card has been marked as A8. The D1 gave reply to the notice and the same has been marked as A8. The office copy of the same has been marked as D1. And reply notice dated on 20 January 2005 and D2 acknowledgement card shows that it was received by the counsels of the plaintiffs on the 24th January 2005. The suit came to the file on 24th January 2005 itself. It was the cause of the action, nothing mentioned regarding to the reply notice for the refusal of the performance by the defendants. Plaintiff has stated that Exhibit A1 sale agreement dated on 5 July 1995 was meant for selling the property to him, and it was not giving the security for the loan avoided by the defendant for himself. Plaintiff also stated that the defendant executed A1 sale agreement in his favor for selling the suit property for the total consideration of 10,000. According to the plaintiff, he paid the entire sale agreement on the date of execution of sale agreement itself. Further, disposed that it was the sale agreement, has been retreated and defendant shall execute the sale deed which with the plaintiff either wish of his name or on the name of the nominees. And the defendant were employed in Tripur. They requested the time for the execution of sale deed in favor of him, due to which the plaintiff avoided to file the suit. Disposed that D1 alone is the absolute owner of the suit property on the behalf of his D2. On the date of sale agreement, the defendant has handed over all the original sale deed marked as A2 on the date of 18 March 1980 to plaintiff. Thank you.
श्रीमान महोदय, मैं आपके समक्ष अपने पक्षकार के बचाव पक्ष में जवाब दावा पेश करना चाहती हूँ। क्या आपकी अनुमति है? महोदय, प्रतिवादी सादर निम्नलिखित प्रति आधारों पर प्रतिवाद पत्र पेश करते हैं। यह है कि वादी के द्वारा कणिका 1 में लिखित बात स्वीकार, अतः जवाब की आवश्यकता नहीं है। यह है कि कणिका 2 में लिखित बात आंशिक रूप से स्वीकार है, अतः आंशिक रूप से अस्वीकार है, क्योंकि इसमें कभी कोई विक्रय, अनुबंध या दोनों पक्षकारों के मध्य कोई भी मध्य किया ही नहीं गया। यह है कि वाद पत्र की कणिका 3 में लिखित बात स्वीकार है, और वाद पत्र की कणिका 4 में लिखित बात गलत होने के कारण यह अस्वीकार है, और वाद पत्र की कणिका 5 में लिखित बात अस्वीकार है, और वाद पत्र की कणिका 6 में लिखित बात अस्वीकार है, क्योंकि प्रतिवादीगण कभी ऐसी बात पर सहमति नहीं हुए थे। और यह है कि वाद पत्र की कणिका 7 में लिखित बात अस्वीकार है, और वाद पत्र की कणिका 8 में लिखित बात अस्वीकार है, और यह है कि वाद पत्र की कणिका 9 में लिखित बात अस्वीकार है, और वाद पत्र की कणिका 10 में लिखित बात स्वीकार है। वाद पत्र की कणिका 11 में लिखित बात गलत होने के कारण ये भी अस्वीकार है, और वाद पत्र की कणिका 12 से कणिका के विधिक होने के कारण यह जवाब देने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। महोदय, मैं आपके समक्ष कुछ विशेष कथनों को रखने जा रही हूँ। शेष तथ्य विशेष कथन में लिख किए जा रहे हैं। प्रतिवादीगण ने वादी के द्वारा वाद पत्र में किए गए अभिवचनों से इनकार करते हुए विशिष्ट रूप से अभिवचनित किया कि द्वितीय प्रतिवादी ने वर्ष 1991 में वादी से 10,000 रुपए उधार लिए थे, और उक्त ऋण की सुरक्षा के संबंध में प्रतिवादी ने वादी के पक्ष में एक प्रोमिसरी नोट लिखा था। प्रतिवादीगण ने 3 रुपए प्रति सैकड़ा प्रति माह की दर से ब्याज भी अदा किया है। चूँकि प्रतिवादीगण को अपने व्यापार में घाटा हुआ था, इस कारण वे वादीगण को ब्याज अदा नहीं कर सके, तथा उन्होंने वादग्रस्त संपत्ति से संबंधित मूल दस्तावेज वादी को प्रतिभूति बतौर सौंप दिए थे। उन्होंने वादी को अपने दस्तखत किए हुए कोरे स्टाम्प पेपर भी दिए थे। वादी ने उनसे कहा था कि वह कोरे स्टाम्प पेपर मासिक ब्याज की समुचित अदायगी के लिए प्रतिभूति बतौर ले रहा है। यह भी कहा था कि वह ब्याज अदायगी के संबंध में वादग्रस्त संपत्ति का कब्जा भी लेगा और प्रतिवादीगण से प्राप्त कोरे स्टाम्प पेपर पर एक दस्तावेज लिखेगा। जुलाई 1995 में प्रतिवादीगण ने वादीगण से प्राप्त लोन को पटाने के लिए उक्त संपत्ति को विक्रय करने का प्रयास किया, किंतु वादी ने तत्काल कोरे स्टाम्प पेपर का उपयोग करते हुए और उक्त पर यह लिखकर कि वादीगण ने उससे उक्त संपत्ति को बेचने का अनुबंध किया है, उन्होंने वादग्रस्त संपत्ति को बेचने से रोक दिया। प्रतिवादीगण खाली स्टाम्प पेपर हस्ताक्षरित करने की दिनांक से वादी को संपूर्ण ऋण राशि में 36% सालाना ब्याज सहित अदा करने की इच्छुक है। प्रतिवादीगण को वादी द्वारा भेजा गया नोटिस दिनांकित 5/1/2009 कभी प्राप्त नहीं हुआ। विक्रय अनुबंध दिनांक 5/7/1995 सत्य व वास्तविक नहीं है तथा उसका तात्पर्य कभी भी वादी को संपत्ति बेचना नहीं रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुआ संव्यवहार मात्र एक ऋण संव्यवहार है। अतः विनय है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा स्वीकार किए जाने की आज्ञा प्रदान करें। वादी का दावा खारिज कर प्रतिवादी को वादी के विरुद्ध के वाद व्यय दिलाए जाने की कृपा करें। महोदय, मैं आपके समक्ष कुछ अपने साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्रथम प्रतिवादी क्रमांक 2 का पिता है, उसकी साक्ष्य है कि द्वितीय प्रतिवादी ने वादी से 10,000 रुपए की राशि ऋण के रूप में 3 रुपए प्रति सैकड़ा प्रति माह आधार 36% की दर से उधार ली थी। वादी ने उनसे कोरे स्टाम्प पेपर पर ऋण राशि की अदायगी के लिए पेपर्स पर ऋण की राशि की अदायगी के लिए प्रतिभूति और बतौर हस्ताक्षर करवा लिए थे, जिसे बाद में उसने संविदा के विशिष्ट अनुपालन हेतु बात प्रस्तुत करने के दिनांक के लिए इस्तेमाल किया। उसकी यह भी साक्ष्य है कि जब द्वितीय प्रतिवादी का वादग्रस्त संपत्ति का पर किसी भी प्रकार का कोई स्वतंत्र या अधिकार नहीं है, उसे विक्रय अनुबंध में शामिल किया जाना यह स्पष्ट करता है कि विक्रय अनुबंध मात्र ऋण की सुरक्षा के लिए किया गया संव्यवहार था। उसकी यह भी
साक्ष्य है कि वादी ने ऐसा कोई भी दस्तावेज यह सिद्ध करने के लिए पेश नहीं किया है जिस उसने 1995 से 2009 के बीच अपने पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए कोई कार्यवाही की है। मैं प्रतिवादी पक्ष की तरफ से कुछ तथ्य रखना चाहूंगी, इजाजत है। महोदय, वादी पक्ष द्वारा इस मामले को कुछ तथ्यों, तिथियों तथा कानूनों में घुमाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि वादी पक्ष की विद्वान अभिभाषक महोदया ने बताया कि प्रतिवादी क्रमांक 1 तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 आपस में पिता और पुत्र है। टीपीए की सेक्शन 6(1) यह बताती है कि प्रतिवादी क्रमांक 2 जो पुत्र है उसको संपत्ति का विक्रय अनुबंध करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि जो संपत्ति का स्वामित्व है वो प्रतिवादी क्रमांक 1 अर्थात पिता को है। टीपीए की सेक्शन 43 यह कहती है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति को जबरन हस्तांतरण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि वादी ने पूर्ण प्रतिफल 10,000 रुपये दिनांक 5/7/1995 को प्रतिवादी को दे दिए थे, जो सच है, परंतु इन्होंने उस दिन या उसके 2 से 3 दिन या कुछ दिनों बाद तक अपने पक्ष में विक्रय पत्र को निष्पादित क्यों नहीं कराया। इन्होंने सिर्फ 10,000 रुपये के लिए संपत्ति का कब्जा, प्रॉमिसरी नोट और खाली स्टाम्प क्यों लिए। ये 5/6/2007 तक क्या कर रहे थे। इन्होंने किसी प्रकार की इस बीच में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। इन्होंने इस बीच कभी, जैसा कि इन्होंने कहा कि 5/6/2007 को वादी के कहने पर प्रतिवादी ने कहा कि हम 6 माह के अंदर विक्रय पत्र आपके पक्ष में निष्पादित कर देंगे। फिर इन्होंने 6 माह के बाद किसी प्रकार का एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों इन्होंने किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। 5/9 को प्रतिवादी के विरुद्ध नोटिस इशू कराया, जो इन्होंने भी स्वीकार किया है कि प्रतिवादी को कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। 20/1/2009 को जवाब नोटिस इशू कराया गया, जो कि प्रतिवादी की तरफ से था, जो 24/1/2009 को स्वयं विद्वान अभिभाषक महोदया द्वारा स्वीकार किया गया, जिसे उन्होंने बिना प्रतिवादी का पक्ष रखे हुए इस वाद को प्रस्तुत कर दिया। महोदया, इन्होंने 1995 से 2009 तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने 1995 से 2009 तक इतने विलंब का कोई भी उचित कारण नहीं बताया। यह वाद आर्टिकल 54 जो लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल 2 में बताया गया है, इसके अंतर्गत सीमा अवधि के बाहर है। पक्ष स्वीकार करता है कि प्रतिवादी क्रमांक 2 ने जो 10,000 रुपये लिए वह लोन के स्वरूप में लिए थे, जिसका मूलधन 10,000 रुपये तथा ब्याज 14 वर्षों के लिए 36% प्रति वर्ष की दर से ₹50,400 तथा इसका जो भी बाद व्यय हुआ है उसका भुगतान करने के लिए प्रतिवादी पक्ष इच्छुक है तथा तत्पर है। अतः इनका यह वाद खारिज किया जाए। प्रतिवादी को आदेश दिया जाए कि वह वादी पक्ष को लोन अमाउंट में ब्याज तथा वाद व्यय के साथ अदा करें। धन्यवाद। जैसे कि इन्होंने बताया कि D1 और D2 जो सन एंड फादर हैं, तो वो दोनों ही पार्टीज हैं और उन लोगों के बीच में एक सेल एग्रीमेंट हुआ है जो रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड A1 डॉक्यूमेंट जो मेरे क्लाइंट ने प्रस्तुत किए हैं, तो वो प्रॉपर एक एविडेंस के रूप में है। सेकंड, इन्होंने बोला है कि 10,000 रुपये कंसिडरेशन, तो वो हाँ कंसिडरेशन हुआ है, जो इन्होंने खुद एडमिट किया। और थर्ड, जो प्रोमिसरी नोट और ब्लैंक स्टाम्प पेपर की बात हुई है, तो पहले तो ये उनका ही फॉल्ट है कि प्रोमिसरी नोट और ब्लैंक स्टाम्प पेपर विद सिग्नेचर ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ इन्होंने किया भी है। तो हमारे पास इनका डॉक्यूमेंट है जो A1 एज अ डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट और विद A2 ओरिजिनल सेल डीड एग्रीमेंट भी है। और जो इन्होंने बताया कि 5/6/2007 को plaintiff orally requested to the defendant to execute the sale deed, जो सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका एक एविडेंस सेक्शन 92 अकॉर्डिंग प्रोविजो 4 द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट टू rescind or modify any such contract may be proved except in case in which such contract is by law required to be in writing or has been registered according to the law in force for the being as the registration of document, जिसके कारण ये एक प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ है, इम्प्लाइड एग्रीमेंट। और इन्होंने बताया कि 14 साल वाली बात, तो एक केस था रामन वर्सेस नटराजन
after trial, the trial court passed a judgment, a decree dated 42/2012, holding that the agreement dated 19 June 1993 was the true and valid, that the suit was not barred by the limitation, and that the plaintiff was entitled to the relief of specific performance. तो ये 14 अस्वीकार है और कि 14 साल तक इन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि उन लोगों के बीच में एक रिलेशन था, वो अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते थे। लेकिन 2009 में जब प्लेंटिफ ने एक नोटिस दिया, उस नोटिस का आंसर नहीं आया था, फिर उन्होंने डिफेंडेंट ने उनके पोजीशन में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था, तब उन्होंने केस किया। और इन्होंने एक और बात की है कि इनने वेट क्यों नहीं किया नोटिस के आंसर का, क्योंकि इसके पहले भी एक नोटिस दिया गया था, इसका आंसर नहीं आया था, अवॉइड किया गया था, इसलिए उन्होंने दूसरे वाले नोटिस के आंसर रिप्लाई का वेट नहीं किया। इसलिए चाहते हैं कि पास अ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड द परमानेंट इंजंक्शन